So let's start the lecture. Today we are going to talk about our cytoskeletons. So what are basically cytoskeleton? Cytoskeleton is basically an elaborate network of proteinaceous substances. Elaborate network of proteinaceous substances. That means ki all the different types, excuse me, all the different type of elements that comes under the cytoskeleton, they are made up of proteins only. So they are considered as an elaborate network of filamentous proteinaceous structure, and they consist of microtubules, microfilaments, and intermediate filaments. And these three are collectively known as cytoskeleton. I will repeat it once again. What is cytoskeleton? This is an elaborate network of proteinaceous यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स ये जितने भी फिलामेंट्स है, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ओनली. So it is an elaborate network of proteinaceous substances, microtubules, microfilaments, and intermediate filaments. Collectively known as cytoskeleton. So collectively known as, ये जो 3 different types के cytoskeletons हमारे cytoplasm के अंदर present होते हैं in a cell, they all together constitute your cytoskeleton. Constitutes cytoskeleton. I think you all are aware of the terms spindle fiber formation during cell division. You must be aware. You must be aware of the cell furrow formation during your cytokinesis. So these things, these are being formed by the arrangement of the different cytoskeleton inside the cell. And because of that only, they are divided into 3 different types, and they have different diameter also. The diameter of your microtubule is basically 25 nanometer. The diameter of your microfilaments ranges from 6 to 8 nanometer. And the intermediate filaments, as the name itself says, the diameter is in between your microtubules and microfilament, that is up to 12 nanometer. So this is the difference कि इनके diameter में भी difference है. Yes, within a cell ये किधर present होते हैं वो भी different होता है. Yes, their role, their function is also different. They are made up of different proteins. If I would talk about the microtubules, then I will say that microtubules are made up of tubulin proteins. There are 2 different types of tubulin protein, alpha and beta, alpha tubulin and beta tubulin. If I will talk about the microfilament, that the most basic protein that I will talk about is your actin. Actin proteins होते हैं and they are coiled upon each other. एक दूसरे से coiled रहते हैं. If I will talk about the intermediate filaments, then here different classes of keratin proteins comes into existence. If I will talk about the hair, then here comes the keratin proteins. If I will talk about the muscle fibers, then your muscles में different होते हैं. So like this, there are many different types of proteins which are responsible for intermediate filaments, but they are different class of the keratin proteins only. Now we will look inside a cell where they are present. I will share a screen over here in order to understand, to make you understand the thing. Just a minute.
just a minute. Wait a minute. Yes. So actually जो मेन चीज है वो रिकॉर्ड हुआ नहीं शायद, जो अभी हमने पढ़ा था. I will try to recap it. Okay. So basically these microtubules I will teach you today only कि जब भी हम centrioles का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो around the centriole there are amorphous structures present known as mesicle or pericentriolar structures, and these are also known as microtubule organizing center. और वहां से microtubules organized होते हैं centriole के part से. You are partially correct. Yes, it originates from the one of the region of the centriole microtubules, and they are responsible for the formation of the spindle fibers. Centriole का ये region जो होता है pericentriolar region, it's also responsible for the formation of asters. You must be aware of the term aster. जब भी हम cell division में cell पढ़ते थे वहां पर ऐसे centrioles होते थे और centriole के ऐसे हम क्या बनाते थे, asters draw करते थे. Is it स्टार का जैसे? यस, दैट इज एस्टर्स. तो ये एस्टर भी आपका साइटोस्केलेटन ही बनाता है. ठीक है, दीज एस्टर्स आर आल्सो फॉर्म बाय द साइटोस्केलेटन ओनली. तो टुडे वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट साइटोस्केलेटन्स. डिफरेंट साइटोस्केलेटन का किधर क्या रोल है वो भी हम पढ़ेंगे. जस्ट अ मिनट, मैं सबसे पहले आपको इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो बता देती हूँ. सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से बने हैं. स्ट्रक्चर पे डिफरेंट होता है. जब भी मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की तो मैंने बोला इट्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन्स होते हैं, एंड दे आर बेसिकली हॉलो एंड आर अरेंज्ड इन अ हॉलो सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर. एंड 13 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, मतलब एक साइज के होने चाहिए. ये भी मैंने जल्दी में बनाया तो ऐसा डायग्राम बन गया. जस्ट अ मिनट. 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिखेगा और फिर वो नीचे भी रहेगा, नीचे भी बनते जाएगा. और इसी तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज करके अपना स्ट्रक्चर बनाता है. दैट मींस कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो है वो इस तरह से अरेंज होता है एंड दे फॉर्म हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, एंड दीज हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ साइटोस्केलेटन. सो योर microtubules are made up of alpha and beta tubulin, but your microfilaments are made up of actin proteins, and your intermediate filaments are made up of different class of keratin protein. I am not only using the term कि ये keratin है तो ये hair का protein है. keratin का भी different class of protein होता है. अगर वो neurons में axons and cytons बना रहा है तो वो neurofilament हो जाएगा. अगर वो muscles में microfibrils बना रहा है तो that is another class of keratin proteins. So basically intermediate filaments are made up of different class of keratin. Yes, Gayatri? Muktit ne actually. Yes. Yeah, yes. Ma'am, actually that structure that you have drawn in the bottom left corner of the board, that is one tubulin or it is many tubulins forming one microtubule? Yes. Actually, I told कि they are made up of protofilaments. Proto मतलब initial structure is there. So a number 13. These are 13 in number. These are 13 tubulin proteins. Okay. And below also a number of tubulin proteins. They arrange themselves to form different structure of the microtubules. Now here I will add one more point. Okay, that you listen carefully. Yes, bachcha. Yes. So there are 13 tubulin protein molecules or what? Molecules. होते ही सिर्फ दो टाइप के, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, बट डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं एंड दे आर बीइंग अरेंज्ड. लेट मी टेल वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. दे हैव अ प्लस एंड अ माइनस साइन.
बहुत easily they can add different numbers of protein molecules or they can disintegrate it. अगर उसको जरूरत है तो बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ऐड करते जाता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट मींस योर ट्यूबुलिन, और अगर जरूरत नहीं है, काम हो गया है, तो वहां से वो निकल जाते हैं, वो फिर से साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं. तो ये इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है माइक्रोट्यूब्यूल्स की कि ये अरेंजमेंट करता है बाय इट्स ओन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, बिकॉज इट हैज टू रीजन, प्लस रीजन जहां से ट्यूबुलिन प्रोटीन्स ऐड हो सकते हैं, एंड द माइनस रीजन जहां से ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को वो बाहर डिस्कार्ड ऑफ कर सकता है. तो इट्स जस्ट एन अरेंजमेंट, जस्ट माइंड इट. मैंने सबसे पहले यहाँ ऊपर क्या लिखा है, एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेसियस सब्सटेंसेस. That means these structures are made up of proteins, arrangement of protein. If I am talking that this is a microtubule, so here there is an arrangement of ट्यूबुलिन प्रोटीन्स इन अ वेरियस ऑर्डर. और मैंने बोला हॉलो होता है, इसमें बीच में ये हॉलो रहेगा जब भी आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखोगे. सिलेंड्रिकल है, like this. If this is my bottle, it's a cylindrical, और इसके साइड में ट्यूबुलिन प्रोटीन्स अरेंज है, फिर उसके नीचे भी अरेंज है, फिर उसके नीचे भी अरेंज है, तभी तो ये सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा. अगर सिर्फ एक ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा. और हॉलो भी होना है, यानी बीच में नहीं रहता है, सिर्फ साइड साइड में 13 रहेगा मॉलिक्यूल्स, फिर उसके नीचे भी रहेंगे, फिर उसके नीचे भी रहेंगे, फिर उसके नीचे भी रहेंगे, एंड दे फॉर्म अ हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. इज इट क्लियर टू यू ऑल? और ये किस चीज से बना हुआ है? बाय द अरेंजमेंट ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन्स. क्लियर? Yes, ma'am. Excuse me, Yes. ma'am. यस बच्चा. Ma'am, means it is like a big, big coil of wire gauze. वायर Roll of wire. होगा बच्चा, तो हाउ कैन यू सी दैट इट्स अ हॉलो? क्योंकि मैंने डिफरेंस बताया कि जब भी मैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बता रही थी तो मैंने बोला ये हॉलो नहीं होता है. पैरेलल सॉलिड्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर पैरेलल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, पैरेलली अरेंज होता है, एंड दे आर सॉलिड इन नेचर. जस्ट मे शेयर यू वन मोर स्क्रीन, देन इट विल No, बी. ma'am, not that wire. Ma'am, the wire gauze that we use for, means the wire mesh which we use on windows and all. Okay, yes, you can roll it like this. The Yes, structure- ma'am, a roll of that mesh. Yes, yes, definitely. But they are circular in structure. ट्यूबुलिन प्रोटीन सर्कुलर और हॉलो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. यस, जब भी आप वायर को भी ऐसे फोल्ड ऑन करोगे जो हम विंडो में लगाते हैं तो भी बीच में hollow structure होता है. Yes, you can say that. I'll again share one more screen with you in order to make clear all the differences between microtubules, microfilaments, and yeah, you can see here cytoskeleton. I have mentioned here the 3 different types of cytoskeleton: microtubules, intermediate, and microfilaments. So basically the first difference is in their diameter. तीनों का diameter quite different है एक दूसरे से. If I will talk about the microtubules, then their diameter is 25 nanometer. If I would talk about the intermediate, then their diameter ranges from 8 to 12 nanometer. If I will talk about the microfilaments, then it's around 7 nanometer, or in some of the book, it may be found that it was written 6 to 8 nanometer. 6 to 8 nanometer. Okay. Now we will talk about the protein composition. Okay, what are the, because these all are elaborate network of proteinaceous substances. So they are made up of different proteins. So you can clearly see here that microtubules are made up of tubulin protein with 2 subunits, alpha and beta tubulin. Now in the intermediate filament, one of the different type of protein से बना हुआ होता है. For example, keratin हो सकता है, lamin हो सकता है, desmin हो सकता है. Yes, यहाँ आप लोग मुझसे लेमिन के बारे में पूछ सकते हो, जो हम पढ़ेंगे जब भी हम न्यूक्लियस को डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. न्यूक्लियस का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियर लेमिना. एंड दिस न्यूक्लियर लेमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द formation of the nuclear membrane. अगर कभी उसमें wear and tear आ जाता है तो, as well as providing the structural support to the nucleus. Desmin is also another type of proteins. So as I told that intermediate filament consists of different class of keratin proteins. So lamin, desmin, they are also different class of keratin
proteins. If I will talk about the microfilaments, then we will talk about the protein actin. Actin protein से बना हुआ होता है. अब इनका shape कैसा होता है? That is also important. You can see here, it's clearly visible to all of you. या थोड़ा सा बड़ा करूँ? Ma'am, it's visible clear. ठीक है. So first we will learn about the microtubules. तो microtubule का shape कैसा है? मैंने अभी आपको बताया था. It's hollow cylinder made up of two protein chains twisted around each other. It's hollow cylinder made up of two different proteins, that is alpha and beta tubulins, that is twisted around each other. When we will talk about the intermediate, so they are made up of protein fibers, coils, twisted with each other. Twisted with each other जो मैंने यहाँ पे parallel solid cylindrical structure बनाया था, ये एक दूसरे के साथ twisted भी हो सकते हैं. Twisted form में present रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ताकि इनको strong structure provide किया जा सके. When we will talk about the microfilaments, then there is two actin chains होते हैं and they are twisted around each other. सिर्फ दो chains ही होते हैं, और जैसा हम DNA का structure पढ़ते हैं वैसा आप कह सकते हो कि they are twisted upon each other. Now the main point is the functions. What are the main functions of these cytoskeleton in a cell? So first we will talk about the microfilaments. तो microfilaments किधर present था? The first question that should come to your mind कि microfilaments जो है वो कहाँ पर था? That is present near the periphery, that is the plasma membrane के पास था. बिल्कुल. So it will help in the formation of the cytoplasmic extension, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो माइक्रोफिलामेंट्स का अगर आपको अच्छे से पता है, नॉलेज है, आपको पता है कि ये चीज किधर प्रेजेंट होता है, तो आप डेफिनेटली इसके फंक्शंस खुद भी डिटरमाइन कर सकते हो. तो बेसिकली माइक्रोफिलामेंट इज फॉर द सेल शेप एज वेल एज फॉर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, that is your formation of microvilli or for the formation of pseudopodia. Now we will learn about intermediate filaments कि intermediate filaments हमारे सेल में क्या करता है. तो intermediate filaments का काम है organization, organizing cell shape, उसका position, organelle का position, and they also provide structural support to nuclear membrane. जो अभी मैंने बताया था lamina protein, अभी जस्ट मैंने आपसे बात की है, न्यूक्लियर लेमिना इज अ स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इट्स बेसिकली फॉर सपोर्टिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए. तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ योर इंटरमीडिएट filaments. Now the third one, that is your microtubules, and the most important one we will learn about here. As I told कि microtubules, they are responsible for spindle fibers during cell division. Spindle fiber during cell division. भैया spindle fiber बनता कैसा है? Spindle fiber is formed by the association of the different microtubules. Microtubules के different arrangement से हमारे spindle fibers बनता है. और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो spindle fibers microtubule को organizing region होता है, वो किधर present होता है? Centriole में present होता है. So basically एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी बहुत ध्यान से सुन लो, आई विल राइट ऑन द बोर्ड ऑल्सो, बट ये क्लियर कट आपको ये पूरी चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी है. मैं सेंट्रियोल का नेम क्यों बार बार ले रही हूं? क्योंकि सेंट्रियोल इज द बेसिक स्ट्रक्चर. Listen carefully. Centriole is the basic structure of the cilia and flagella. सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर जो है, उसका जो बेसिस है, उसका जो बेस है जिसके ऊपर सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया है, दैट इज सिमिलर टू द सेंट्रियोल. दैट मींस अगर हम सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं, और अगर सेंट्रियोल और सीलिया और फ्लैजेला लिंक्ड है, दैट मींस योर माइक्रोट्यूब्यूल इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सेल motility, because they are also associated in the formation of cilia and flagella. Is it clear how they are associated? How the structure is being considered that this is the basis. Basis कहने का मतलब ये है, for example, जब भी हम मैथ्स में ट्रिगो सॉल्व करते हैं, आई विल कम टू योर सृजन,
जस्ट अ मिनट, जब भी हम मैथ्स में बेसिक ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ओह वी हैव टू लर्न द डिफरेंट जो भी डेरिवेशन है कि साइन थीटा, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है। ऐसे ही हमारा बायोलॉजी में भी बहुत सारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यू कैन से कि जो सेंट्रियोइड का बेसिक स्ट्रक्चर है उसी में थोड़े से चेंजेस होके सीलिया एंड फ्लैजेला का, यस वेदांत, आई विल डेफिनेटली शेयर द पिक्चर्स। जो भी पिक्चर मैंने आपको दिखाई है आई विल शेयर विद यू ऑल, ओके। एक्चुअली ये पिक्चर मैंने कल या परसों क्लिक की थी, विनर्स बैच में मेरा यही चल रहा था साइटोस्केलेटन, तो मैंने सोचा आपको भी वो दिखा देती हूँ तो दैट विल बी इजियर। यहाँ से बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं दिखता होगा कभी कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से, इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। ओके, सो वो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा पूरा का पूरा ट्रिगो उस पे बेस्ड है कि साइन 30, साइन 40, 10, 45 क्या होता है, जस्ट लाइक दैट सेंट्रियोइड के स्ट्रक्चर से ही सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बना है। वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड मेक अ नोट ऑफ इट, सीलिया एंड फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को जब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया गया तो वी हैव फाउंड दैट दे आर बीइंग सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनका आउटर सरफेस जो है, अगर फ्लैजेला ऐसे प्रेजेंट है किसी भी सेल के ऊपर, फ्लैजेला प्रेजेंट है तो दे आर सराउंडेड बाय द प्लाज्मा membrane in eukaryotic organisms, in eukaryotic, क्योंकि we know that flagella is also present in prokaryotes, but the structure of the flagella in prokaryotes and eukaryote is totally different. In case of prokaryotes, your flagella is made up of basal body, hook and a long filament. Is it? Do you remember? Yes, ma'am. Yes, Yes, and yes, they are made up of flagellin proteins. But here, in case of eukaryotes, we will learn in detail how inside a flagella they look like. They have a 9+2 arrangement of the microtubules. They are not made up of flagellin proteins, but definitely they are made up of microtubules, and that's why they are made up of tubulin proteins. Yes, Shujan? Ma'am, please can you explain intermediate filament again? Yes, definitely, बच्चा. Just a minute. Intermediate filaments, as I told कि इनका diameter भी जो होता है वो intermediate है 8 to 12 nanometer. So, if I will draw a number of cylindrical solid structure like this, और ये एक दूसरे से intertwined भी हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर. For example, बहुत सारे आपने ऐसे rods ले लिए, solid rod ले लिए, और वो solid है but अगर flexible है and you will intertwined it like this, तो वो सारे एक दूसरे के ऊपर वाइंड होंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये प्रोटीन है, प्रोटीन स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बट यू कैन फोल्ड इट. तो ये बहुत सारा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो इंटरवाइंड होता है अमॉन्ग देमसेल्व्स. बट इन केस ऑफ एक्टिन protein, which is a part of your microfilament, there is only two protein chains which are intertwined just like your DNA. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का अभी हमने पढ़ा था कि इंटरमीडिएट फिलामेंट का रोल क्या है हमारे सेल के अंदर, वो माइक्रोफिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट था. तो बेसिकली इट्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल as well as to provide a definite shape to the cell organelles. जैसे कि we know कि we have plastids in case of plant cells and they have to rotate in order to capture the incident light. तो वो जो सेल ऑर्गेनल्स मूव करते हैं उसके मूवमेंट को भी हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कंट्रोल करता है. तो सेल के पोजीशन, सेल ऑर्गेनल्स का मूवमेंट, ये सारी चीजें इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो कंट्रोल करता है. इज इट ओके सृजन? Yes, ma'am. Yes, definitely. Okay, I will share the pic with all of you, not to worry about that. Now, ये हमें बेसिक्स तो पता. Ma'am, Yes. ma'am, can I ask the question which is not related to this topic, means which is related to mitochondria basically? Okay. Yes. Ma'am, mitochondria disappear होता है, means exactly वो कैसे disappear होता है, means what does it mean? Disappear in what terms? Ma'am, in the terms of anaerobic condition. In the terms of anaerobic condition, that I will discuss.
फॉर एग्जाम्पल यीस्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को प्रेफर करता है, बट यीस्ट यूकैरियोट है. एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes. Yes, but during the course of evolution, जब ये evolution हुआ तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया का रोल उसने बहुत ज्यादा नहीं किया, and they are much more flexible for the anaerobic respiration. Anaerobic respiration easily कर सकता था और उसने उसको प्रेफर किया, और धीरे धीरे ये जो रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का उसके सेल के अंदर वो डिसअपियर नहीं हुआ. जैसे हमारे बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसका कोई रोल नहीं है. अपेंडिक्स. Yes, yes, ma'am. तो उसी तरीके से यीस्ट, यस इट्स अ यूकैरियोट, उसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया था, बट उसका यूज नहीं कर रहा था. वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ज्यादा सक्षम था. द हिंदी वर्ड इज दैट कि वो कर सकता था, बहुत इजीली कर सकता था. तो व्हाई टू टेक द पेन? तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल धीरे धीरे स्टॉप होते गया, और अगर हम किसी चीज को नहीं यूज करते हैं कंटिन्यूअसली, तो इन कमिंग जनरेशंस जो थे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसका साइज भी बहुत छोटा होते चला गया और वो ना के बराबर रोल प्ले करता है. ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक जैसा इवोल्यूशन हो रहा है, इट्स बेसिकली ऑन द इवोल्यूशन थ्योरी. जैसा कि हमने किसके लिए पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट विच आर द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिज्म. हमने क्या थ्योरी पढ़ी थी, एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन. डू यू रिमेम्बर? एनीवन? किसी को याद नहीं है एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन? यस. तो वही चीजें यहाँ पर भी है कि ऑल्दो था बट उसका यूज नहीं किया. वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा अच्छे से कर सकता था, उसके पास वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, सॉरी वो एंजाइम प्रेजेंट है, और इस वजह से उसका रोल जो है धीरे धीरे सप्रेस होता चला गया. ओके, नाउ टुडे. Yes, thank you, ma'am. Yeah, welcome. Now today, apart from this, ये पढ़ाने का रोल क्या था कि इसकी चीजें हमें आगे पढ़नी है. अभी जब मैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बताऊंगी तो वहां माइक्रोट्यूब्यूल्स आएगा. अगर मैं सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बताऊंगी वहां माइक्रोट्यूब्यूल्स आएगा. सो दिस इज द बेसिक कि what is this microtubules and how they are being used in the formation of the other structure. Now we will read in detail about the centrosome and centriole. Just a minute, let me rub the board. So we have to learn about centrosome and centriole. So basically, as I told you that centrosome is an organelle. The organelle is your centrosome, and inside the centrosome, it consists of two cylindrical structure, and that is your centriole. And where they are present? Above the nucleus. Above the nucleus, there is a small space that is known as centrosome, and inside the centrosome, two cylindrical structures are present known as centriole. So one more important thing that I would like to discuss here, as we know that one of the cell organelle which is without membrane, non-membranous, is your ribosomes. But your centriole is also, your centrosome और सेंट्रियोल जो भी बोलना है, इज ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेनस. इनके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होता है. दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर. ओके, कि दे आर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर. तो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल containing two cylindrical structures. अगर कहीं पे आपको सेंट्रियोल देखने के लिए मिलेगा, ऐसे आप कभी सर्च करोगे या बुक्स वगैरह में, तो वो पता है आपको कैसे दिखेगा? कि अगर सेंट्रोसोम है तो जैसा मैंने प्रोटोफिलामेंट्स का अरेंजमेंट बनाया था वैसे ही ऐसा दिखेगा, और इसके ऊपर और भी इस तरीके से ट्यूबुलिन प्रोटीन्स लगेंगे, ऐसे दो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. बट ये दो सेंट्रियोल जो होता है इसका पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. They are at right angle to each other, perpendicular होते हैं एक दूसरे से, and appear cartwheel like structure. What is cartwheel? कार्ट व्हील का जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा रिजेंबल करते हैं. कभी ड्राइविंग करते हुए देखा होगा पापा को, मम्मा को,
तो यू शुड हैव अ लुक कि ये कार्ट व्हील के जैसा दिखता है. ये दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. अगर मैं डेफिनेटली सिर्फ ऐसे बनाऊं, ये जो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, दे आर एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. तो containing two cylindrical structures, centrioles. Another important point is that centrioles are at right angle to each other. Centrioles are at right angle to each other. They are also membraneless. Membraneless. As I discussed, जैसा आज ही मैंने बताया आपको कि centriole जो है वो surrounded होता है by amorphous substances, and those amorphous substances are known as mesicule or they are known as पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. अगर ये बड़ा सा ऐसा मैं कोई सेंट्रियोल बनाती हूँ, ये भी मैं रब करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ ऐसा राउंड नहीं होता है, अंदर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है. तो इसके साइड, इसका जो साइड है वो सराउंडेड होता है बाय एमॉर्फस सब्सटेंसेस लाइक दिस. By amorphous substances, and these amorphous substances are known as mesicule, दो नाम है इसका, as well as pericentriolar center. आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, मैम क्यों, इसकी क्या जरूरत है, ये ऐसा क्या काम करता है सेल के अंदर जो ये इस तरह से आपने लिखा है कि ये पेरीसेंट्रियोलर स्ट्रक्चर है. यस बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब भी हमने 9th-10th में सेल डिवीजन पढ़ा होगा और हमें इंटरफेज पढ़ाया गया, तो वहां पर हमें G1, S और G फेज के बारे में बताया गया. एम आई राइट और रॉन्ग? पढ़ा है कि S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है. डू यू रिमेम्बर? S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है. बट जो ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है और सेंट्रियोल मूव करना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, तो बाद में करता है. बट सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी एस फेज में हो जाता है. ओके, सीबीएसई में नहीं था, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर कि ड्यूरिंग द सेल, क्योंकि इसके बाद हमें सेल डिवीजन पढ़ना है, वहां मैं और डिटेल में बताऊंगी कि इसका रोल क्या है, मैं वो बता रही हूँ इसका रोल क्या है. तो जब भी हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग सेल साइकिल एस फेज में, वो अभी भूल जाओ क्योंकि अगर नहीं जिसको पता है वो हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे. एट दैट टाइम ओनली योर सेंट्रियोल्स आल्सो डुप्लीकेट. बट डीएनए के पास, न्यूक्लियस के पास तो पूरा का पूरा डीएनए है कि कौन से जीन्स बनाने, कौन से प्रोटीन बन रहे हैं. बट सेंट्रियोल कैसे रेप्लिकेट करेगा? बिकॉज ऑफ मेसिकल पेरीसेंट्रियोलर रीजन. इसकी वजह से हमारा जो सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट करेगा. तो एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली योर सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय amorphous structure called mesicles or pericentriolar satellite. Mesicles act as nucleating center. इसके लिए एक वर्ड और यूज किया गया जाता है, mesicule. They act as a nucleating center as well as किसी बुक में आपको एक और वर्ड देखने के लिए मिलेगा. मैं सारी चीजें डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ना, एक्स्ट्रा बुक्स या फिर कैसे ऐसे सर्च करने बैठते हैं चीजें, तो वो कंफ्यूज नहीं हो. तो इसको हम एक और बोलते हैं MOTC रीजन भी बोलते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनका ऑर्गन, MTOC माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर. माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है. माइक्रोट्यूब्यूल्स तो प्रेजेंट है बट ऑर्गेनाइज उनको कौन करेगा, एस्टर्स कौन बनाएगा, उसके लिए हमारे पास ये न्यूक्लिएटिंग सेंटर है, ये मेसिक्यूल प्रेजेंट है. ये सब सेम एक ही चीज का ये सारा नाम है, मेसिक्यूल एज वेल एज पेरीसेंट्रियोलर सेंटर. और इसका रोल है एस्टर फॉर्मेशन.
ग्रो, और ये एस्टर कैसे बनता है? बाय द अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो द रोल ऑफ योर वेसिकल और द पेरिसेंट्रियोलर सेंटर, क्या रोल है? एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन during cell division. During cell division. And how it occurs? By organizing the microtubules. Esters कैसे बनेगा? Ester formation ये करेगा सेंट्रियोल, पेरिसेंट्रियोलर. ये किसका पार्ट है? ये हमारे सेंट्रियोल का ही पार्ट है. तो मैंने बोला था कि हमारा जो सेंट्रियोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में. तो क्या कर रहा है? एस्टर फॉर्मेशन कर रहा है. और एस्टर कैसे बनता है? बाय ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स. अभी तो ये बहुत सिंपल है, अभी इसके अंदर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है. आई विल कम वन बाय वन. मैं डायरेक्ट आपको फोटो दिखा सकती थी. आई विल शेयर द स्क्रीन लास्ट में ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए. MTOC मुक्तित, it's microtubule organizing center. Okay, I will write here. MTOC का फुल फॉर्म क्या है? Microtubule organizing center. Clear? कि ये अभी Yes, ma'am. कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि now you have to organize the microtubules in order to form the esters. क्योंकि esters कैसे बन रहे हैं? ester microtubule से बनता है, बट उसको organized कौन कर रहे हैं? वो रोल कौन दे रहा है? वो सिग्नल कौन दे रहा है? That is being given by the MTOC, that is the nucleating center, that is being done by the amorphous substances, some of the amorphous substances that circulates your centrioid. Yes, Gayatri? Ma'am, it's membraneless means these two centrioles are there, and all around the centrioles that amorphous fluid called as pericentricular center Yes, is there. it's a fluid, membrane And nahi it's hai. like nucleoid. It's like nucleoid of prokaryote. Yes, you can say. They are without the membranes. This is just the amorphous substance circulating it. Okay? In different patches. आपने Okay, देखा ma'am. होगा मैंने ऐसे patches बनाए. Okay, now one of the most important thing that we have to learn about the centriole. Other important point. ये जो आपको पेरिफेरी दिख रहा है, पूरा एक सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है. 9 peripheral triplets of microtubules are arranged. Listen, word I'm writing here. 9 peripheral triplets of microtubules. 9 पोजीशंस पे तो होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर एक यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. मैंने अभी बोर्ड पे ड्रॉ किया है. मैम, व्हाट इज एस्टर? एस्टर इज नथिंग बट इट सराउंड्स द सेंट्रियोइड during cell division, and these esters are also made up of microtubules. Okay, we will read the role of the ester in detail in cell division वाला chapter. तो बेसिकली वो माइक्रोट्यूब्यूल से बन रहा है, इतना अभी हमें जानना है. सेल डिवीजन में और डिटेल में बताऊंगी कि क्या रोल है उसका. यस, तो ये 9 पोजीशंस पे, इक्वल पोजीशंस पे होता है. मैंने ऐसे रैंडम ड्रॉ किया है, बट इट्स इक्वल पोजीशंस पे 9 प्लेसेस पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर इन ट्रिपलेट्स. अगर तुमने गौर किया होगा तो मैंने यहाँ ट्रिपलेट लिखा है. दैट मीन्स एट ईच पोजीशन देयर आर 3 fibrils. There are 3 fibrils. Triplet of fibrils are present. So if this is your, just a minute. ये माइक्रोफिब्रिल्स ही हैं.
नीचे स्पेस नहीं है मेरे पास. ओके, इस तरीके से 9 प्लेसेस पे प्रेजेंट है, बट दे आर इन ट्रिपलेट्स. ट्रिपलेट्स को क्या बोलते हैं? सब फिब्रिल्स. माइक्रोफिब्रिल्स है, बट यहाँ पर 3 सब फिब्रिल्स भी प्रेजेंट है, एंड दे आर बीइंग नंबर्ड फ्रॉम C to A, C आउटसाइड और A इनसाइड. तो जैसे इसको मैं C नेमिंग करूंगी, इसको मैं B नेमिंग करूंगी, इसको मैं A नेमिंग करूंगी. इज इट क्लियर? इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से प्रेजेंट होता है. नाउ these triplet of microfibrils, they are also linked to each other. जितने भी ये पेरिफेरल पे 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. लिंक कैसे होते हैं? जो तुम्हारा इसका C होगा वो इसके A से अटैच्ड होगा. ठीक है, जो इसका A होगा वो सेकंड वाले के C से अटैच होगा. अभी देखो, ये C, ये B और A, ये अगर ये A है तो इसको भी फिर कैसे अटैच होना चाहिए? इधर C से अटैच होना चाहिए. ठीक है, अभी फिर ये C है, इसको A से अटैच होना चाहिए, A को C से अटैच होना चाहिए, C को A से अटैच होना चाहिए. इस तरह से ये एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं. दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, C से A को. क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस हो गया है इसलिए आपको क्लियरली वो नहीं दिख रहा है. तो ये 9 है, बट इसके सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है. इस वजह से सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को हम 9+0 बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप दिस इन माइंड. बट जब भी मैं आपको सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बताऊंगी, इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगी, दैट वी सी इनसाइड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वहां पर हम देखेंगे कि सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड उसी वजह से सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, जिसका बेसिस हमारा सेंट्रियोल है, सीलिया एंड फ्लैजेला, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रियोल है, वो क्या हो जाता है? 9+2. 9+2 हो जाएगा. बट बेस यहीं से मिला है, ये स्ट्रक्चर यहीं से मिलता है. बट यस, देयर आर सर्टेन modifications. अभी यहाँ पर बीच में, Will you repeat this once? Yeah, as I previously told that cilia and flagella are being formed by the basic structure of the centriole. तो centriole के basic structure में आपको 9+0 structure दिखा, क्योंकि सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं है. 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरी पे प्रेजेंट है इन ट्रिपलेट्स. बट जब भी हम सीलिया और फ्लैजेला की बात करेंगे तो वहां पर 9 पेरिफेरी पे तो प्रेजेंट होंगे ही, सेंटर पे भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो मॉडिफिकेशन हो गया इसके स्ट्रक्चर में. 9+0 जो हमारे सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, वो सीलिया और फ्लैजेला में क्या हो गया? 9+2. बिकॉज दिस 2 क्या है? दीज आर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स एट द सेंटर. 2 microtubules at center. Now it's clear? Yes, ma'am. Yes. Now ये तो सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए लिखा, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं. I will now at the center position, यहाँ पर कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है, बट दे हैव अ सेंट्रल हब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां से बहुत सारे रेडियल स्पोक्स निकलते हैं जो डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स को पेरिफेरी पे टच करते हैं. ये जो डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में भी एक दूसरे को टच करते हैं. यहाँ से भी टचिंग रहती है, ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से. और यहाँ से हब वाला पोजीशन जो है, जो हमारा कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर बताएगा, यहाँ से भी ये सारे पेरिफेरल प्रोटीन जो हैं वो रेडियल स्पोक से अटैच होते हैं. नाउ यू विल सी द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्टव्हील. आई एम शेयरिंग द स्ट्रक्चर विद यू ऑल, क्योंकि मैंने बेसिक बता दिया. अब आप इजिली समझ जाओगे कि यस, व्हाट आई वुड लाइक टू, जस्ट अ मिनट. Now this is the structure जो आपको बुक्स में देखने के लिए मिलेगा. Here you can see that at the periphery there are triplets of microfilaments दिख रहे हैं हमें.
C to A उनकी नंबरिंग होती है. जो A होता है वो कंप्लीट सर्कल है, बट जो B और C है वो C के जैसा दिख रहा है, कंप्लीट सर्कल नहीं है. ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर मैंने भी यहाँ बनाया है. Only A subfibrils, there are 3 subfibrils, these are made up of 3 subfibrils, C, B, A, and C is at the outer side and A is towards the inner side. This is the difference. And A is a complete circle and B and C is a structure that represent the alphabet letter C. You can see here. Now A, C, C, A ऐसे पूरा attached हो रहा है और एक flower जैसा structure बन रहा है. Now you can see in the inside also they are connected. दिख रहा है आपको कि आपस में connected है. Black dots and grey color का dots दिख रहे हैं, हर जगह connected है. As well as from the central hub, they are also connected with the help of radial spokes. और 9 spokes हैं. Question कभी कभी आता है, how many radial spokes are present in a centroid? Yes, definitely there are 9 radial spokes, क्योंकि 9 peripheral microtubules structure को touch करना है. अब ये cart wheel structure जो central rod hub है और जो 9 spokes दिख रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलके से कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. सबको ये स्ट्रक्चर समझ में आया अभी अच्छे से? यस मैम. ये आपस में भी ऐसे अंदर जुड़े हुए रहते हैं. ठीक है, ऐसे बना सकते हो हम स्ट्रक्चर. क्योंकि मेरा ये इक्वली प्लेस नहीं हुआ, पहले मुझे लगा 9 नहीं होगा तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा पास पास ड्रॉ कर दिया. And now these all are connected to the central hub also, and this is your radial spoke. Clear? तो ये मेरा central hub है. These are the radial spokes. And these radial spokes are 9 in number. And these 3 CBA, these are known as subfibrils. Subfibrils. Ranging from C to A. C towards the outside and A towards the inside. A का structure देख सकते हो clearly एक complete circle है. But B और C जो है वो alphabetical letter C को represent कर रहा है. ये हमारा basic structure है, that is of the centrioid. Okay. Now one more important thing. अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी ना अभी कि what is the basic function of the centrioid, तो तुम सब मुझे बोलोगे शायद कि basic functions जो है ना वो सेल डिवीजन में जो ये एस्टर फॉर्मेशन करता है ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. बट नॉट. The primary function of the centrioid is locomotion. Microtubules help करता है locomotion में. And the secondary function of the centrioid is that they play a very important role during cell division. This you should also keep in your mind. कि main function of centrioid is locomotion and the role of centrioid in cell division is the secondary function. Primary function. Locomotion. Secondary function. Cell division. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. न्यूक्लिएटिंग सेंट्रोइड, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में. ये सेंट्रोइड का और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे. मैंने क्या बताया आपको कि द न्यू सेंट्रोइड अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रोइड. अभी प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रोइड एस फेज में किधर से आया? ये सेंट्रोइड जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जब भी हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, हम माइटोसिस की बात करते हैं, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो स्पर्म होता है वो पहला प्राइमरी सेंट्रियोल जो होता है वो सेल को प्रोवाइड करता है. तो दैट सेंट्रियोल, ये हम पूरा डिटेल में कभी पढ़ेंगे जब भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. बच्चा हर चैप्टर में हम सारी चीजें ऐसे कवर नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी वो स्पेसिफिक चैप्टर में वो चीज आएगा और वहां पर हम डिस्कस करेंगे तो आपको एक बार में माइंड में आएगा, यस मैम ने बताया था
कि जब भी पहला सेल के पास जो सेंट्रियोल आता है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द स्पर्म, दैट इज द मेल गैमेट. बट ये सेंट्रियोल जो है ये डुप्लीकेट कभी होता है सेल डिवीजन में ड्यूरिंग द एस फेज. तो इसको डुप्लीकेट करने के लिए कौन हेल्पफुल होता है? योर मेसिक्यूल और द पेरीसेंट्रियोलर सेंटर, ये हेल्प करता है. तो द न्यू सेंट्रियोल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल इन एस फेज विदाउट प्रेजेंस ऑफ डीएनए ड्यू टू मैसिकल्स. क्योंकि डीएनए नहीं है उसके पास, डीएनए होता तब तो वो बताता ना कि मेरे पास डीएनए है तो ये जीन्स है, तो मैं जो भी प्रोटीन चाहिए, जो भी स्ट्रक्चर चाहिए वो मैं बना सकता हूँ. बट डीएनए नहीं था, फिर वो कैसे बनाएगा? प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लिएटिंग center. Centriole takes place part in the basal body of the cilia and the flagella. Yes, this is also very important point. 2 पॉइंट मैंने आज आपको cilia and flagella, 3 पॉइंट्स मैंने आपको आज cilia और flagella का बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट कि cilia and flagella का जो basal body है that is contributed by the centriole. Second कि cilia and flagella they दोनों का स्ट्रक्चर सेम है जब भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एंड दे आर सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटर साइड. आउटर साइड्स पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं. और अगर न्यूमेरिकली बताना हो कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर, देन इट्स 9+2. बट सेंट्रियोल का 9+0 होता है. बट दिस 9+2 स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजेला इज ओनली इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. Keep this in your mind. Okay? Done? सबके इधर आ गया? Write in your notebook. These are the important points जो हम skip कर जाते हैं जब भी हम पढ़ने बैठते हैं. But जो भी मैं कहती हूँ कि it's very important, you should write in your notebook. You have to. आप अगर बोर्ड नहीं भी देखता है ना तो आपको मेरी आवाज ऑडिबल हूँ मैं, क्लियरली ऑडिबल हूँ मैं. एक चीज को 2-3 बार इसलिए ही रिपीट करती हूँ कि अगर किसी का रह गया है तो वो लिख लेगा. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे माइंड में आई, कभी कभी पढ़ाते वक्त वो थोड़ी छोटी चीजें स्किप हो जाती है, बट यस, सेंट्रियोल. अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रियोल इज अ स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आप सब बोलोगे नो मैम, बचपन से हमने जब भी डिवीजन किया है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का, तो हमने हमेशा यही पढ़ा है कि सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट दे आर एब्सेंट इन प्लांट्स. इज इट ओमकार? यही पढ़ा है ना प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंशिएशन में. बट यहाँ आज मैं आपको इसमें थोड़ा सा चेंज बताऊंगी. टोल्ड कि सेंट्रियोल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर मेरे सीलिया और फ्लैजेला का है. तो वो जितने प्लांट्स जो लोअर प्लांट्स होते हैं, इफ आई विल टॉक अबाउट द लोअर प्लांट्स, देन वी विल टॉक अबाउट द ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनके बारे में मैं बात करूंगी. और जो ये लोअर प्लांट्स होते हैं वो उनके पास सेंट्रियोल होता है, हायर प्लांट्स में नहीं होता है. इन हायर प्लांट सेंट्रियोल इज नॉट देयर. सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन हायर प्लांट, ऑल्दो सेंट्रियोल इज फाउंड इन सम प्लांट्स व्हिच आर फ्लैजेलेटेड स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल में उनका फ्लैजेलेटेड स्टेज होता है. दैट मीन्स कि व्हाई ये फ्लावरिंग प्लांट, ये एंजियोस्पर्म्स किधर से आए? इट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन. सबसे पहले हमारा एल्गी था, फिर ब्रायोफाइट्स आया, दैट इज ऑल्सो नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. ये सारी चीजें जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उधर पढ़ेंगे. फिर टेरिडोफाइट आया, जिम्नोस्पर्म्स आया, और देन वी need a reproductive organ, and then during the course of evolution flowers came into existence. But in the lower plants, whether they are the algae, whether they are the bryophytes, whether they are the pteridophytes, they depend upon water for fertilization, and for that they have a flagellated structure in their life cycle. और अगर flagellated structure है तो we will say that they have centriole, because centriole is the basis of the basal body of cilia and flagella. Is it clear to all of you? Just show me the thumbs up, or else I will repeat once again. आदित्य को समझ में आया? यस. ओमकार को भी समझ में आया? गायत्री को समझ में आया? यस. बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू में आ सकता है. हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, बट लोअर प्लांट्स में विच हैव अ फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर इन देयर लाइफ साइकिल, फॉर एग्जांपल algae, bryophytes, pteridophytes, they have centriole. ओके, ये क्वेश्चन अभी जब भी ये टेस्ट होगा मैं ये बनाने वाली हूँ, फिर देखती हूँ कितने बच्चों को याद रहता है.
दिशा, तनिष, शुभम, स्पंदन, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा. आराध्या, प्रसन्ना, भाग्यश्री, अजीत. There are many. बच्चा, you have to interact because we have to deal like this only for अभी थोड़े दिन, थोड़े time. और मैम please repeat. I want a note. Okay, okay, Mukti. You can write कि centrioles are absent in higher plants. Centrioles are absent in higher plants, but they are present in lower plants such as algae, bryophytes, pteridophytes, which have a flagellated life cycle in the flagellated stage in their life cycle. Flagellated stage लिख सकते हो in their life cycle. तो lower plants के पास होता है. Do anyone wants to ask something related to this centrioles? Ma'am, Yes, could बच्चा. you please repeat the name of the plants? Algae, Yeah. pteridophytes, and Yeah. Definitely, बच्चा. Just a minute. Let me rub it. thank you, ma'am. Lower plants. They are present in lower plants. Example is your algae, your bryophytes, which are also known as amphibians of the plant kingdom, your pteridophytes. Cycads में भी होता है, cycas. They have centrioles because they have a flagellated stage in their life cycle. इन सब के पास flagellate stage present है और इसी वजह से ये जो lower plants हैं इनके पास centriole होता है. Lower plants, algae, bryophytes, pteridophytes, cycads, they have flagellated stage in their life cycle. ठीक है, क्लियर बच्चा? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में सेम मिलता जुलता स्ट्रक्चर हमारे सीलिया और फ्लैजेला का है. ABC आर टुगेदर. मैम ABC आर टुगेदर? नो 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 नो. ये 3 जो सब फिब्रिल्स है ये इनका नेमिंग है. जो पूरा कंप्लीट सर्कल मैंने बनाया है टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज A, उसके बाद B, उसके बाद C. CBA. C जो होता है वो हमेशा आउटर साइड्स होता है. दे आर द माइक्रोफिब्रिल्स ओनली, दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स ओनली, बट उसके सब यूनिट्स हैं, ट्रिपलेट्स में प्रेजेंट है. इस वजह से इन ट्रिपलेट्स को हम बोलते हैं सब फिब्रिल्स. जब भी हम सीलिया एंड फ्लैजेला पढ़ेंगे वहां हम एक और डिफरेंस देखेंगे. वहां पर 9 स्ट्रक्चर तो होगा बट वहां ट्रिपलेट नहीं होगा, वहां डबलेट होगा. ठीक है, दैट आज एक दिन में इतना चीज दे दूंगी तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर आराम से फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ताकि ये डिफरेंसेस आपके माइंड में हो. ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये ऐसा दिखता है. इससे अंदर से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, द सेंट्रल हब एंड द रेडियल स्पोक्स, कितने माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को का न्यूमेरिकल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 9+0. न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सेंट्रल से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. होप कि तुम लोगों को आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग ऑल्सो. मैंने किया है रिकॉर्डिंग, लेट्स सी एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. आपका इसके बाद कोई क्लास है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टुगेदर मुक्तित टुगेदर हम उनको बोलते हैं ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स. ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स. ओके बेटा, या फिर ट्रिपलेट फिब्रिल्स बोल सकते हैं. और अगर सेपरेट बोलेंगे तो CAB, दीज आर 3 डिफरेंट फिब्रिल्स. ओके, Yes, ma'am. Got. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक इतना पढ़ लो. एक बार NCERT की रीडिंग बच्चा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. दिस इज योर होमवर्क. गो थ्रू द NCERT चैप्टर वंस. NCERT का जो हमारा सेल का चैप्टर है, लाइन बाय लाइन उस NCERT को पढ़ो, क्योंकि जैसे ही हमारा ये सीलिया एंड फ्लैजेला होगा उसके बाद हम एक डाउट सेशन रखेंगे. ओके, चलो, सी यू ऑल देन. बाय. Ma'am, Ma'am. thank you. Bye, ma'am. Hi all of you. Thank you, ma'am. Bye.